In this video, you'll be learning about space planning part 2. So, we'll start with bubble diagram, then block diagram, layouts, and then after we'll move to proximity, clearance, circulation, standards, benchmarks. Likewise, we have to also discuss about location, orientation of your site or the building. And then after is the furniture layout, which is also very important to discuss. Then room audit. So you must have heard about auditing. It's all about reaching to precise number. So since it's space, so space has also got numbers in terms of area. Then analysis, synthesis, and finally grid and levels. So let's begin this video from bubble diagram. So bubble diagram नाम से ही पता चलता है कि इट्स लाइक बबल ऑफ वाटर. शेप क्या होता है? राउंड. तो अगर आपने यूँ सर्कल बना दिया या आपने एलिप्स बना दिया, सो दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ बबल. नाउ bubble should be made in such a way that the space of the whole area covered in actual terms. Suppose this is the whole area you have at the rate say 40 feet by 30 feet. So this is the area. Since this is bigger one, I have made just like that, so let's delete it. Let's come to this. Suppose I want to make one room over here. To make a room, I'll have to make this circle relating the actual size. So suppose the radius which is being shown here is 4 feet. This is now 5 feet. Means this is covering the space of almost 10 feet by 10 feet. Yes. So the bubble must contain the estimated area. Okay. It could be little higher or lesser, it doesn't matter. But what matters is that it should be of the same size of the room. Okay. कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ये सर्कल छोटा सा बना देते हैं. इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अगर नेक्स्ट रूम रेक्टेंगुलर है, आपने एलिप्स लिया, न्यू बना दिया, दिस इज द एलिप्स यू हैव मेड. दिस इज अगेन ऑलमोस्ट 11 or 12 feet by 12 feet area. Okay. If it is rectangular, so we'll take ellipse. Even you can take sketch command and then you can simply sketch it like this. But better is to use the circle and ellipse. Okay. ये बहुत ही रफली किया जाता है. इससे ओवरऑल स्पेस की यूटिलिटी हमें पता लग जाती है. Yes. अगर मान लो कि आपने स्मॉल साइज में यूज़ करा तो आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा. इट विल बिकम मिसलीडिंग. Okay. क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस है आप उसमें और भी रूम्स फिट इन करना चाहेंगे. लेकिन अब अगर मैं रियलिस्टिकली चल रहा हूँ, स्पेस के हिसाब से मैंने बबल बनाया, इससे ये होता है कि मुझे यूटिलाइज्ड स्पेस का अंदाज़ा हो गया कि इतना यूटिलाइज्ड स्पेस है. Yes. इतना एम्प्टी है. इस एम्प्टी स्पेस में और रिक्वायर्ड स्पेसेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं. Yes. सो डोंट गो ऑन ट्रेंड्स. In our institute, we generally deal everything based on STEM. Yes. That is why we call it as STEM based course. Now what is STEM course? We use things from science, technology, engineering and mathematical models so that we reach near perfection, near solution, near to
achieving the best possible design. Yes. Now we'll come back to this. So bubble diagram can also be called as relationship diagram, Okay. because this space and this space must be having some relation. Suppose this is room number 1 and this is room number 2. Yes. Now room number 1 may have direct relationship with room number 2, Yes. Yes. or it could have a intermediate relation, or it can have a distant relationship. Yes. So to plan your space in such a way that it becomes easy for you to start architecture layout planning or furniture layout planning, Yes. we begin with the very basic thing that is called bubble diagram. Yes. अब हम वापस आते हैं यहाँ। तो रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है ये पता चला कि दो स्पेसिस का क्या रिलेशन है, वो हमें बबल डायग्राम से दिखाना है। इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग एडजेसेंसी, whether two spaces are immediate, close, convenient, having minor relationship Yes. or major relationship, whether both these spaces are requiring the use of acoustics, Yes. whether they require natural lights and view. So these considerations must be there in the bubble diagram. So suppose in this space, if you have the criteria to have a view, then you can show view over here. So you can have a legend, you can have a symbol to indicate that there's a view this side. So we can have a line like this just to show that there's a view outside. For the sake of making the interconnectivity between these two rooms, we can make arrow like this. So we can go like this and then the arrow is there. So to show even the acoustic, if you are separating this room with this room, suppose this is the office in which there's a cabin and this is the meeting room. So probability of sound is high here, and this particular space requires to be quiet. Yes. So we can have a symbol. If I use sketch command and then after I'll have a symbol like this. So this symbol is indicating what? That this space and this space separated by a symbol, which symbol is representing the acoustic. Okay. So these considerations which is being listed here can be shown in the bubble diagram. तो ये बबल डायग्राम है, ये कोई ड्राइंग नहीं है। Okay. ये बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है। इट्स लाइक आप कहीं एक शांत जगह पे बैठे हैं, जैसे एक पोएट आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है या कोई पोएट पोएम लिख रहा है, प्रोज राइटर प्रोज लिख रहा है। इसी तरीके से आप एक स्पेस को लेकर बैठ सकते हैं और बबल से यू कैन प्ले अराउंड टू रिलेट देम टुगेदर। चूँकि एक कंबाइंड स्पेस में, एक प्लॉट में, एक जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसको मैं कंबाइंड स्पेस कह रहा हूँ, उसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ के रिलेशनशिप होते हैं। उस रिलेशनशिप को सबसे अच्छे तरीके से सबसे कम टाइम में दिखाया जा सकता है बबल डायग्राम से। Yes. So that's the importance of bubble diagram. Okay. Now we will move to block diagram. Block diagram is nothing but it's all about making block out of the bubble already you have made. तो मैं अगर यहाँ आता हूँ और दिखाता हूँ कि बबल को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम
ब्लॉक में, तो इसके लिए हमने रेक्टेंगल लिया और ये इसको भी हमने जो है अंदाजे से स्पेस को लिया। बट बबल में ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि बबल बहुत ही रफली होता है, स्पेस कवरेज थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है एक्चुअल जो स्पेस रिक्वायर्ड है उस रूम के लिए। लेकिन ब्लॉकिंग में हम प्रिसीजन लाने की कोशिश करते हैं। इफ़ द रूम साइज इज से 10 feet by 10 feet, so try to bring the box in the same size. Likewise, we keep on making the block out of it. So इस तरीके से करने को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ये भी एक रफ वर्क है। This is not a drawing. You don't require to make it precise. So you keep on blocking it. ब्लॉक करने से फ़ायदा क्या होता है? इससे ना रूम दिखना शुरू हो जाता है। एंड देन आफ्टर, इसके जस्ट बाद हम लोग आर्किटेक्चरल लेआउट बनाते हैं जहाँ पे हम डोर्स, विंडोज़, thicknesses of the walls, whatever different thicknesses which you require, we fix there. लेकिन एक आर्किटेक्चरल लेआउट को बनाने से पहले दो मैंडेटरी स्टेप्स one should always have. One is to have the bubble and then after blocking. ब्लॉकिंग से स्पेस दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बबल के लेवल पे you need to really ponder over your space. बहुत सोचना होता है, बहुत टाइट प्लानिंग करनी होती है so that it doesn't fail. अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखें तो मेकिंग ग्रिड ऑफ स्पेस बेस्ड ऑन एडजेसेंसी डेवलप्ड इन बबल डायग्राम, जो अभी मैं बता रहा था। अ डायग्राम शोइंग इन स्कीमेटिक फॉर्म द जनरल अरेंजमेंट ऑफ different spaces of a complex large open area within peripheral walls. So ये एक schematic sketch है जिससे कि हम different areas को block out करते हैं। ठीक है। Now we'll move to the third point, layouts. So in simple terms, layout is nothing but it is assembly of different spaces having recognizable symbols of doors, windows, walls, ventilators, etc. Layout means how the object, whether it is geometrical object or non-geometrical object, how you lay on a platform, on a surface, on the ground is called layouting, layout. So if suppose you have 5 cubes, Yes. and you have the area of say 2 feet by 2 feet, whether it is paper, whether it is land, whether it is rooftop, it could be anything, any surface. The moment you lay those 6 cubes in the space, whatever way you want to make the pattern of laying, that is called layouting. Putting across in the space those blocks will be called as layouting. So just lay means किसी चीज को बिछा देना, रख देना। तो एक रूम में फर्नीचर को रखना क्या है? ये लेआउटिंग है, लेआउट करना है। किसी प्लॉट पे डिफरेंट रूम्स को कंबाइन करके बनाना क्या है? लेआउटिंग है। किसी बेड पे पिलोज, बेड कवर, ब्लैंकेट, व्हाटएवर यू पुट ऑन, उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इट्स लेआउटिंग। Yes. डाइनिंग टेबल पे डिशेस को अरेंज करना, वो भी क्या है? Layouting. लेआउटिंग है। तो इसमें हम सीखते क्या हैं कि how to lay out in such a way, in a scientific way, that you don't face problem once you use this space. Okay. So layout starts with furniture layout, floor, reflected ceiling plan, elevations,
electrical layout, lighting layout, then you have sprinkler layout, smoke detector layout, you name it, whether it is plumbing or if you have only partitions then you can call it as partition layout. कई बारी लोगों को ये होता है कि लेआउटिंग मीन्स फर्नीचर लेआउट. नहीं, लेआउटिंग किसी भी चीज की हो सकती है. सपोज आपने एक बहुत बड़ा ह्यूज हॉल लिया जिसमें आपको पेंटिंग की डिस्प्ले करनी है, तो उसमें फर्नीचर एम्प्टी स्पेस में, जैसे हमारे कमर्शियल स्पेसेस में, रेजिडेंशियल स्पेसेस में, इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस में होता है, वैसा पैटर्न नहीं रखा जा सकता. क्यों? वहाँ पे पब्लिक को विजिट करना है, दे हैव टू मूव अराउंड एंड लुक एट योर पेंटिंग्स. तो जनरली इसको हैंग किया जाता है वॉल के साथ. तो आपका होल एरिया इज एम्प्टी, बट दैट इज ऑल्सो हैविंग अ लेआउट कि कौन से साइज की पेंटिंग या कौन से प्रोमिनेंस की पेंटिंग किस साइड में, किस एलिवेटेड हाइट में होनी चाहिए. इस अरेंजमेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में करने को लेआउटिंग कहते हैं. अगर आपकी लेआउटिंग बहुत अच्छी है मीन्स आप 70% डिज़ाइनर हो. अगर आपका ये पार्ट वीक है तो आप समझ जाओ कि आप 10% भी डिज़ाइनर नहीं हो. ये कन्फ्यूज़न है लोगों को कि अगर हमने इंटीरियर डिज़ाइन किया या इंटीरियर आर्किटेक्चर किया या आर्किटेक्चर किया तो उसमें ये जो ब्यूटीफुल फसाड जो दिख रहा होता है या लुक जो है स्पेस का इंटीरियर में, जो LED लगा के लोग आजकल करते हैं और बहुत ही लस्ट्रस फील देते हैं, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, मिरर एटसेट्रा यूज़ करते हैं. नो, इट्स नॉट डिज़ाइन, इट्स ऑल अबाउट फूलिंग अराउंड द पीपल. रियल डिज़ाइन तो आपके लेआउट्स में है. जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 70% पार्ट अब कवर करते हैं इफ़ यू नो how to lay out the space. Yes. So it's very very crucial. For example, अगर आपने फर्नीचर लेआउट में, अगर मैं आपको स्पेस में दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये रूम है. अब इस रूम को मैं रूम की तरह ले करके इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक सोफ़ा यहाँ लगाया और एक सोफ़े को यहाँ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर टेबल लगा दिया. और अगर आपने यहाँ पे एक सिचुएशन है कि यहाँ पे अपने पफी लगाया, दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपने जिस चेयर के साथ बैकरेस्ट है आपने उसको लगाया. यू टेल मी विच ऑप्शन वुड बी बेटर. ये तो ब्लाइंडेड ऑफ है क्योंकि यहाँ पे वॉल है तो इसके बैकरेस्ट तो होंगे, तो वी कैन हैव बैकरेस्ट ओवर हियर. देयर इज नो इशू, देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट दिस, राइट? Yes. लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट अबाउट दीज टू? वन इज पफी, अनदर वन इज अ चेयर, Okay. और सिंगल सीटर सोफा विद बैकरेस्ट. Okay. Tell me, which is better? I think the puffy is better Why so? because it doesn't block the viewing angle of a person. Yes, तो स्पेस में फर्नीचर को जब हमने ले करा तो रख देना ही लेआउटिंग नहीं है. इसमें कंसिडरेशंस, व्यूइंग कंसिडरेशन. If a person is sitting over here or a person coming from this side, if you're having backrest, it will block the view of this side. Yes. To certain extent. Yes. First thing. Now psychological part of design I talk about. अगर आपने इसको लो हाइट रखा ना तो आपका ये स्पेस स्पेशियस दिखेगा, ज़्यादा स्पेस महसूस होएगा. Okay. जो जितना फ्लोर के लेवल को आपने टच किया, जितना लो लाइंग आपने फर्नीचर रखा, उतना ही ज़्यादा स्पेस आपको खाली खाली महसूस होगा. Okay. अगर आपने इसके हाइट को इंक्रीज करा, सपोज इवन दो यू आर हैविंग बैकरेस्ट, जिसका बैकरेस्ट का हाइट अगर आपने 1 फुट रखा और किसी का आपने 3 फीट रखा, तो 3 फीट वाले में
क्योस ज़्यादा होगा, विजुअल क्योस। इससे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो आपके ब्रेन पे ऐसा जाएगा कि दिस होल स्पेस इज क्योटिक। टू मिनिमाइज द क्योस आप फर्नीचर के हाइट को फ्लोर के लेवल पे लेके जाइए, उसकी जितना क्लोज ले जा सकते हैं ले जाइए। बट अगेन you'll have to look at the anthropometrics and the ergonomic side of space planning. That is a different thing. लेकिन in general layouting is not about just putting the stuff inside this space. It is also about thinking its psychological impact on the humans. क्योंकि हम जिस चीज़ से बने हैं उनमें साइकोलॉजी का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हमें क्लटर महसूस होता है ना किसी स्पेस में, तो हमारा माइंड पीसफुली उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति अगर आप जिस स्पेस में चाहिए वहाँ पे आपको लेआउटिंग उसकी ऐसी करनी है कि किसी तरह का साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। Layout includes what? Construction stacking, also known as layout, is the process of interpreting construction plans and making the location of proposed new structures. Construction stacking is performed to ensure a project is built according to design plans. So layouting का एक ये भी फायदा होता है कि you put a lot of thought into it. ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आप। इससे आपकी लेआउटिंग में जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर्स नहीं होता। वेल थॉट ऑफ प्लान जिसे कहते हैं ना, दैट इज ऑल लेआउटिंग। इफ यू टेक से 5 days टू मेक लेआउट ऑफ अ हाउस, से 3 BHK स्पेस यू हैव, और उसी को बनाने के लिए आपने 3 months लिया, या आपने उसी को बनाने के लिए 3 years लिया, यू टेल मी which time period would be the best for layouting your 3 BHK space? 3 days, 3 months or 3 years? I think 3 months. No, in terms of business, it should be done in 3 days. 3 days, yes. But in terms of having very, very strong plan, you can take it almost 3 years. But again, you will ask me, why 3 years? Because you can go on further micro part of your design. Even you can plan the granule size of your paint. You can think of the edging of furniture or the skirting. You have time to think of undulations. You have time to think and select the best material in terms of strength, look, durability. You have time to select the finishes, best combined or combination of the finishes. Again, you have time to survey. कई बारी क्या होता है कि हमें काम आया, हमने काम स्टार्ट कर दिया, और हमें जो नॉलेज होती है हमारे नॉलेज बैंक में, उसी से निकालते हैं, हम उससे बना देते हैं। लेकिन मान लो कि कोई नई सी चीज़ करनी है, आपको पता ही नहीं है, देन ऑब्वियसली यू नीड सर्वे, यू नीड फर्दर स्टडी अबाउट दैट, यू नीड टू नो द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट फिनिश और द मटेरियल। तो जितना ज़्यादा आप टाइम लेते हैं उतना ही टाइम मिलता है आपको प्लान करने का। प्लानिंग इज नॉट जस्ट पुटिंग थिंग्स इन द स्पेस, एज आई टोल्ड यू, it's hell lot of thing to brainstorm on. The finish, the color, the material, the strength part of it. Now let's talk about scientific part of the space planning. आपने जिस मटेरियल को पिक करा है उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या है, नहीं पता, देन व्हाई यू यूजिंग दैट? टेबल टॉप ग्लास यूज कर रहे हैं, प्लाई यूज कर रहे हैं, बोर्ड यूज कर रहे हैं, HDHMR यूज कर रहे हैं। अब स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करते हैं, सबकी अलग अलग कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी लेवल अलग अलग है। जिसको हम सिंपल टर्म्स में लाइफ कहते हैं, साइंटिफिक टर्म्स में उसको ब्रेक करके एक एक पार्ट को स्टडी किया जाता है।
ये सब पॉसिबल तभी है जब आप कोई भी स्टेम बेस्ड डिज़ाइन कोर्स करते हैं। अगर आप कोर्स ऐसा करते हैं जिसके अंदर में आपको ये बताया जा रहा है कि ये लैमिनेट होता है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी ये है, आप पॉलिश यूज़ कर लो, क्यों यूज़ कर लो, सबस्ट्रेट क्या है, SDHMR क्यों यूज़ करें, क्योंकि सभी यूज़ कर रहे हैं, नो, you'll have to plan। और ये प्लानिंग तभी हो सकती है जब आप SDHMR को सही तरीके से जानते हैं। सही तरीके से जानने का कुछ भी एक पैमाना नहीं है। एक सिंपल वे में आप उस कंपनी से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की शीट मांग लें, आपको उसमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ, यंग मॉड्यूलस, इलास्टिक लिमिट, वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट, वो सारी चीज़ें आपको डेटा दे दी जाती है। अगर आप स्पेसिफिकेशन नहीं जानते और आप सोचते हैं कि मैंने अगर ग्लॉसी चीज़, कोई तड़क भड़क वाली चीज़ें लगा दी तो आप डिज़ाइनर बन जाते हैं, नहीं, वो पार्ट जानना इम्पॉर्टेंट है। रही बात फिनिश की, इट्स मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स you become expert of it. Finish is something which you go to the industry and then you understand it. But while being in academics, you need to know the science behind the design. If you don't know that, you are finished. After doing the course, आप भटकते रहो, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बाद में कहोगे कि ये कोर्स ही अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा है, लेकिन you'll have to really put time into it. Now let's talk about space planning stuff. Okay. जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉक्सिमिटी। तो ये नाम में ही है कि प्रॉक्सिमिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये जो सिचुएशन मैंने बनाया था ना, इसमें मैंने रूम को एक्सटेंड कर दिया। मान लो किसी के पास में बहुत ही ह्यूज से हॉल है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी लाइकिंग ऐसी है कि उसको बहुत बड़े स्पेस में रहना पसंद है, राइट? अब मैंने क्या करा एज अ डिज़ाइनर, इन सब चीज़ों को नोटिस करें। जब तक कि किसी भी चीज़ में मेरिट्स ना दिखे, वो चीज़ ठीक नहीं होती। टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स, गो इन डिटेल। And just imagine a person is sitting over here. Just take it as a person, as a top view of the person. Okay? Okay. And another person is sitting over here. Okay? So, what do you think? Is it really a good plan? No. Problem क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है कि एक तो ये जो 2 लोग बैठे हैं आपस में कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, प्लस इन दोनों के पास ही जो सेंटर टेबल है इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो हमने गैप छोड़ा हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम कर रहा है नेसेसरीली। हाँ, कम्युनिकेशन टर्म्स पे अगर ओनली हम प्रॉक्सिमिटी के टर्म्स में बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही हम कम्युनिकेट करते हैं। यस। ऐसा तो नहीं होता कि somebody is on the road and a person is on first or second, third floor and they are screaming, "Hello, how are you?" He'll say, "Yes, I'm fine, thank you." So how many minutes or hours you can communicate like this? Yes. So the same situation is here. So as I was talking about layouting, while doing layouting, you'll have to keep care of the first and foremost thing which is called proximity, कि 2 लोग कितने पास आकर के कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर ये लिविंग रूम है तो बैठते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी के लिए व्हाट डू यू थिंक, कितनी स्पेस होना चाहिए 2 लोगों के बीच में बात करने के लिए? 3 feet, 4 feet. It's around 6 to 7 feet. Okay. Maximum. No, it's the best possible distance. Okay. तो अगर आपने यहाँ पे एक इंसान को बिठाया तो यहाँ से अगर 7 feet लेते हैं तो लगभग यहाँ आएगा।
इट्स लाइक इंसान के हाइट से थोड़ा सा ज्यादा। अब मैं प्रॉक्सिमिटी को दूसरे लेवल पे बात करता हूं। मैं चाहूं तो ये बता दूं कि प्रॉक्सिमिटी इज ऑल अबाउट व्हेन पीपल आर कमिंग टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर, सिटिंग टुगेदर, दे आर ऑल कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। ये हमारा लेवल नहीं है। हम जब तक कि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर ना कर दें हम आगे नहीं जाते। प्रॉक्सिमिटी क्या है उसको पूरी उसकी जो एसेंस है उसको समझने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप इसको समझते ही नहीं हैं, एक एग्जांपल दिया आपने, शायद वही लिमिटेड चीज़ समझा, तो क्लियर नहीं है अभी भी आप। प्रॉक्सिमिटी को ठीक तरीके से हम समझते हैं। पहले देखते हैं ये क्या कहता है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीपल हु विल कम इन कॉन्टैक्ट, दैट्स फाइन। Nearness of people in space and different space in a complex laid out space. ये ओवरऑल डेफिनेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि you have 3 different types of family members. Okay. One is your wife or girlfriend. Second is your father or mother. Third, your children. तो प्रॉक्सिमिटी का डिविजन्स यहाँ क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। वाइफ के साथ कितना डिस्टेंस, बच्चे के साथ कितना डिस्टेंस, पेरेंट्स के साथ कितना डिस्टेंस रखेंगे आप या कोई रखेगा? रूम्स में कहीं पे भी। सबसे ज्यादा इफ यू आर एग्जिस्टिंग इन अ फैमिली, सो वो जाहिर सी बात है आपका रेजिडेंस है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी वाइफ से, उसके बाद चिल्ड्रन से, उसके बाद पेरेंट्स से। गुड, ये ऑर्डर को भी समझना जरूरी है। Yes. So situationally you'll have to think also that if it's a couple room, Yes. then you'll have a totally different set of space planning. Yes. Even laying your furniture could alter. Now I give you a different situation that you are police commissioner and you have again 3 types of people visiting you. One is officer class, officials of your own department. Second could be your relatives. Third could be your family members. Yes. Now what proximity you suggest order wise? Who would be the closest? Sorry, but all the 3 people are There's an officer okay. who is having 3 groups of people Okay. visiting him. Okay. One is the personals from his own department. Okay. Second is the relatives, Okay. distant relatives or close relatives. Okay. And third is the family members. Okay. So how would you, Proximity. being sensible person, design your living room in such a way that distancing of close relative to the officials who are coming So for the formal work. So how would you plan it? I would plan it in a way that the relative would be closer than the family, then relatives, then colleagues. So if you're having very formal arrangement and the officer is of high rank, then you'll have to have farthest possible distance. Yes. So you'll have to use your sensibility. कई बारी लोगों को ये धोखा होता है कि ये जो डिज़ाइन है ना कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये सब कुछ का मिक्स है। Okay. ये मिश्रित रूप है। हर वो चीज़ जो आप जानते हैं उसकी निचोड़ उसको आपने अगर स्किम आउट किया, उसको कंबाइन किया अपनी डिफरेंट स्फेयर की नॉलेज को, एंड देन आपने अगर अपने स्पेस प्लानिंग में यूज़ किया ना तो आप बहुत अच्छे स्पेस प्लानर हो। तो एक इंसान जिसका बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग है, ब्रॉड होराइजन है, मेंटल होराइजन, और एक वो पर्सन जो जस्ट एक फील्ड के बारे में जानता है। डू यू नो हु कुड बी द बेस्ट प्लानर ऑफ द स्पेस? द पर्सन हु इज हैविंग वाइड एक्सपोजर। Yes. क्यों? क्योंकि वो हर उस पॉइंट को सोचता है बिफोर प्लानिंग
which is not possible by a person who is just doing design. Yes. तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये ना एक बहुत ही इजी फील्ड है, कुछ नहीं है. नो, अगर आपके पास में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेस को हैंडल कर सकते हो. इट मीन्स यंगर लोगों से ज़्यादा, जिनकी एज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से स्पेस को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सपोजर ज़्यादा है. उन्होंने उस स्पेस में रह के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा है, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, जो कि यंग पर्सन वो नोटिस भी नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं. तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने को ही तो डिज़ाइन कहते हैं ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉक्सिमिटी. क्लियरेंस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्लियरेंस कुड बी व्हाट? कैन यू गेस व्हाट कुड बी क्लियरेंस ओवर हियर? Clearance, moving space. Moving space, you mean? Space. Can you elaborate on it? Space left to move around, basically. Okay. Move around what? Move around furniture, move around to access different parts Anything. of Yes, room. that's good. तो अगर ये सेंटर टेबल है Yes. तो क्लियरेंस कितने साइड्स होने चाहिए इसमें? इसमें क्लियरेंस के आई थिंक चारों साइड ही क्लियर होने चाहिए इसमें. बिल्कुल. So depending on what type of furniture it is, Yes. the clearance is provided. Okay. अगर इस जगह पे बैठने के लिए आपको जगह चाहिए तो कम से कम यहाँ पे हम 10, 11, 12 इंच से लेके 15, 16 इंचेस तक, हम 18 इंचेस तक रखते हैं. क्यों? इवन 2 फीट भी रख सकते हैं, मोर देन दैट. तो क्लियरेंस किस फर्नीचर के साथ कैसी रखनी है इसकी भी समझ होनी चाहिए. अगर कंसोल है कहीं पे तो उसका ज़्यादातर एक साइड ही एक्सेसिबल होता है, क्योंकि उसकी डेप्थ बहुत कम होती है. तो किसी भी फर्नीचर को यूज़ करने के लिए उसकी जगह पे बैठकर, खड़े होकर, किसी भी पोजीशन में उस फर्नीचर को यूज़ करने के जो पोजीशंस हो सकते हैं, पॉसिबल पोजीशंस, वो स्पेस क्लियर रखने को क्लियरेंस कहा जाता है. उतना स्पेस विल हैव टू कीप क्लियर. अगर मैंने इसको यहां ले जाकर टच कर दिया तो मैंने क्या करा? What stupidity I have done? सोफे का क्लियरेंस इज किल्ड. इस पर्टिकुलर सेंटर टेबल का एक साइड भी. यस. सो इसी चीज को हम कहते हैं क्लियरेंस. अब हम यहां आकर देखेंगे ये कहता क्या है. Space around a system, clearing space around system for its use. किसी भी system means furniture here, उसको यूज करने के लिए जितना स्पेस किसी भी पोजीशन में. Yes. अगर आप कोई हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर्ड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टैंडिंग में. नो, उसकी एक अलग नीड है, तो उस हिसाब से उसकी क्लियरेंस रिक्वायर्ड है. सर्कुलेशन ये कुछ ऐसा है जैसे द बैकबोन इन आवर बॉडी. जिस तरीके से हमारे रिब्स हैं, हालांकि हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक ही बोन स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, दैट इज बैकबोन, विच अगेन कैन नॉट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड. लेकिन बैकबोन ना हो तो यू कैन थिंक द लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट इज टोटली सेपरेटेड, बिकॉज रेस्ट इज व्हाट? वाटर, मसल. सो इसी तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं कि सर्कुलेशन अगर आप नहीं जानते, मींस बैकबोन नहीं है आपके डिजाइन में. अगर बैकबोन नहीं है तो ये स्पाइन से जाके जुड़ता नहीं है, मतलब ब्रेन से. और जिस बॉडी या सिस्टम में ब्रेन नहीं है, यू कैन इमेजिन उसकी कोई लाइफ नहीं है. तो अब इसको हम समझते हैं व्हाट इज सर्कुलेशन. स्पेस ऑफ मूवमेंट. जहां मूवमेंट करने के लिए हमें जो स्पेस लेफ्ट आउट करते हैं उसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कुलेशन. इट रेफर्स टू द वे पीपल, द ब्लड ऑफ आवर बिल्डिंग्स मूव थ्रू स्पेस
In particular, circulation routes are the pathways people take through spaces. अगर हम स्पेस में आते हैं, अगर हमने मान लो यहाँ पे एक एंट्री बनाई और एक एग्जिट बनाया यहाँ पे, I am doing it all roughly just to make you understand the concept. Yes. तो मैं अगर दिखाऊं, इस फर्नीचर को मैं यहाँ रख देता हूँ वापस, तो प्रोबेबल पाथ क्या होगा? प्रोबेबल पाथ या तो हमें एल शेप की क्लियरेंस देनी होगी, अदरवाइज एक डायगोनल क्लियरेंस थ्रू आउट द रूम देनी होगी। ये देखिए, यस। अब क्लियरेंस में भी डिटेल, क्या डिटेल हो सकता है? मैं अगर कहूँ कि ये पॉसिबल पाथ है जो मुझे दिखता है, अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप यहाँ से चलते हो, उसके बाद यहाँ जाओगे, आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे और यहाँ जाओगे। मैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। कई बारी क्या होता है, किसी चीज़ को समझने के लिए रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। yes. मैं अगर आपकी आज़ादी छीन लूँ, बोलूँ कि आपको दिन में भी स्टडी करना है और नाइट में भी स्टडी करना है और मंथ्स तक यहीं रहना है, खाना पीना मैं दूंगा, आप घर नहीं जाओगे, तो मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने आपकी इंडिपेंडेंस को छीन लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मेरे साथ 3, 4, 5 घंटे बैठ के पढ़ो, उसके बाद आप कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हो, जाओ, तो क्या हुआ? मैंने बहुत ही लिमिटेड टाइम लिया आपका, रेस्ट्रिक्शंस तो रखे लेकिन लिमिटेड। yes. तो आप वेयर यू आर हैप्पी स्टडिंग फॉर मंथ्स विद मी, डे नाइट, और स्टडिंग फॉर certain period of time and then you are free to go anywhere. Studying for a certain period of time. Same way में अगर इंसान को फोर्स करेंगे कि आप इधर से घूम के जाओगे, yes. so you are doing stupid planning. Because हमारी एक टेंडेंसी होती है शॉर्टेस्ट रूट को लेने का। yeah. चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं या लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या सोचते हैं कि शॉर्टेस्ट कुछ ऐसा निकल रहा है, या कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि हम कम पैसे में किसी चीज को कर पाए। सेम कोर्स अगर आपको लैक्स ऑफ रुपीज में मिल रहा हो, सेम कोर्स अगर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में मिल रहा हो, तो क्या चुनेंगे आप? थाउजेंड्स ऑफ। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी ऐसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, वी टेंड टू टेक शॉर्टकट रूट। yes. Whether it is good or bad, we can discuss depending on what topic we are discussing and what it entails. लेकिन हमारी टेंडेंसी ऐसी है। तो स्पेस में जब भी स्पेस को प्लान कर रहे हैं, तो ये देखें कि ह्यूमन मूवमेंट किस तरीके से होना पॉसिबल है। सो यू ट्राई टू प्लान द मूवमेंट इन द स्पेस इन वेरी शॉर्टेस्ट लेंथ or distance. This was something which is important I wanted to talk about. अब मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा सर्कुलेशन को क्लियरेंस के साथ। अगर आपके पास में सर्कुलेशन नहीं है और रेस्ट्रिक्टेड, वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन, बट क्लियरेंस बहुत अच्छी दे रखी है, सो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी अ सक्सेसफुल लेआउट? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लियरेंस देने के बाद भी अगर सर्कुलेशन अच्छी नहीं तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। पहले तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे वहां। यस। इट विल बिकम अ जू। यस। जहां पे ट्रीज के अराउंड में स्पेसेस तो बहुत हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की वजह से गेट सारे बंद हैं, आप जा नहीं सकते। यस। मतलब सर्कुलेशन नहीं है लेकिन क्लियरेंस बहुत अच्छी है। सेम वाइल्ड कॉन्सेप्ट यू आर पुटिंग इन, मतलब आप फेल कर रहे हैं। सो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? सर्कुलेशन को। सो लेट्स कम बैक टू दिस लिस्ट एंड अंडरस्टैंड कि किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सर्कुलेशन को, देन क्लियरेंस को, एंड देन प्रॉक्सिमिटी को। अब इसके बारे में भी हम फर्दर, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस फर्दर, but let's end here these three concepts.
and after finishing these points we will end up this particular video. Then in third video we'll discuss about these steps. Okay. What do you think of standards? It's all about attaining the quality. Okay. आप अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को का स्टैंडर्ड क्या होता है या होना चाहिए? In what terms? In terms of being student. स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? हाँ, किस चीज को लेकर? स्टूडेंट का काम क्या होता है? The पढ़ना। moment I say student, so it's all obvious. अगर मैं कहूँ कि एक डिज़ाइनर का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, एक आर्किटेक्ट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, या एक पॉलिटिशियन के स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड मीन्स यू विल हैव टू इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड अटेन द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल. Yes. बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. Yes. ये अगर एफर्ट्स कोई भी लगाता है, किसी भी फील्ड का है, तो हम कहेंगे उसने एक स्टैंडर्ड को टच किया है, लेवल को टच किया है. Yes. Whether it is entertainment industry or education industry or political industry, whatever it is. अब स्टैंडर्ड को लाने के लिए आप क्या एफर्ट्स लगाओगे? एक स्टूडेंट क्या करेगा? मेहनत करेगा, Yes. बहुत सारे बुक्स को रेफर करेगा, जो उस टाइम एग्जिस्टिंग नॉलेज है पूरी दुनिया में उसको एक्सट्रैक्ट करेगा. उसके लिए मशीन लर्निंग बेस्ड AI वेबसाइट्स हैं, गूगल है, फिजिकल फॉर्म में आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, किसी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स के पास जाते हो जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड की डीप नॉलेज है. तो ये सारे एफर्ट्स करने के बाद आप जो एग्जिस्टिंग जो उस टाइम की नॉलेज है आपने उसको गेन कर लिया, आप कह सकते हो कि आई हैव अटेंडेड द स्टैंडर्ड. Okay. तो इस फील्ड में भी, स्पेस प्लानिंग में भी स्टैंडर्ड को हमें लाना इम्पॉर्टेंट होता है. इसके बिना आप किसी भी चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर सकते जब आप स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते. तो वर्ल्ड ओवर या कंट्री वाइज या रीजन वाइज जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको एटलीस्ट अटेन करना. नहीं तो हर इंसान डिजाइनर है. आप किसी भी एरिया में चले जाएं, वेदर इट इज ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, स्मॉल रिमोट विलेजेस, Yes. डोंट यू थिंक लोगों के पास में स्पेस सेंस है? No. है. उनके पास में वो सारी चीजें हैं, उनके पास रूम्स हैं, लेकिन बाद में बताता हूँ लेकिन क्या. उनके पास में आंगन है, कोर्टयार्ड, उनके पास में फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, साइड यार्ड्स, उनके पास में आसपास में ट्रीज, उनके पास गेस्ट रूम, उनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स के स्पेसेस, सब कुछ है. Yes. तो दोज आर ऑल्सो लेआउट्स ऑल्सो ना, दे आर ऑल्सो लेआउट्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहां पे? प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू अटेन दी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ओवर और मे बी इन दैट पर्टिकुलर रीजन और द बेल्ट ऑफ द एरिया. इसी वजह से वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखती है कि गेस्ट रूम बहुत दूर है, रहने का एरिया बहुत दूर है, वॉशरूम्स उसे आगे और दूर बनाते हैं. तो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर रहे हैं, अटेन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रोफेशन में आने से क्या है कि आपको स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है. रिकमेंडेशंस हैं बेस्ड ऑन द स्टडीज, बेस्ड ऑन द रिसर्च, यू विल हैव टू फॉलो. Okay. If you do that, it means you are trying to attain the standards. तो इसमें एक बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें we proceed from the bottom or beginning of a hierarchy or process upwards, non-hierarchical. अब हम बात करेंगे बेंचमार्क्स की. बेंचमार्क्स क्या है? You'll have to take reference point. Suppose you are going to design. आजकल एक बहुत ही
बड़ा एक कल्चर है इंडिया के अंदर कि स्मॉल सिटीज़ टियर 2, 1 और 3 हम हर जगह देख रहे हैं कि कैफ़े से ट्रांजिशन होकर अब लोग क्या बनाते हैं, पहले इंटरनेट कैफ़ेज बहुत होते थे। जब सबके पास में पर्सनल इंटरनेट होने लगे तो अब क्या कहते हैं इसी जगह को, कॉफ़ी कैफ़े, फास्ट फूड कैफ़ेज, राइट, चाय कॉफ़े कैफ़े। वो जो ट्रांजिशन ये हुआ कि इंटरनेट के लिए लोग जाया करते थे तो ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट होते थे। जब इंटरनेट पर्सनल हो गया तो उस स्पेस का क्या, रिडंडेंट। आप समझने की कोशिश करो, बेंचमार्क क्या है कि अगर आप एक कैफ़े बनाना चाहते हो सो आपको क्या करना होगा बनाने से पहले, यू विल हैव टू विजिट द बेस्ट in the region and in the country, in the world. Study them minutely. Come back home. Do your homework. Now you say yourself, and it is human tendency again, कि आप बेस्ट बनाना चाहोगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब 3 बेस्ट को आपने चूज करा और उसको रेफरेंस बनाकर उससे भी ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करा, तो इसको कहते हैं बेंचमार्क करना। कि उसके लेवल को भी क्रॉस करना या टच करना या आसपास रखना बेस्ड ऑन योर ओन बजट। तो स्टैंडर्ड्स का बेंचमार्क से ये रिलेशन है कि जब आप बेंचमार्क कर लेते हैं देन वी रीच ऑन स्टैंडर्ड कि दिस वुड बी माय स्टैंडर्ड, दिस वाज स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी ए, दिस वाज स्टैंडर्ड ऑफ कैफे बी, दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ कैफे सी एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड। तो बेंचमार्क करना भी यहाँ रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी लाइफ में भी होता है कि हम आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, सोचते हैं कि इन जैसे बन जाए या इनसे अच्छे बन जाए, इसी को हम बेंचमार्किंग कहते हैं। एक डिज़ाइनर में ये बहुत ही ज़्यादा डीप सीटेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कभी भी स्टैंडर्ड्स पहुंचने की कोशिश नहीं करोगे। इफ़ यू आर लेजी अबाउट reaching to the standards means something wrong is going to happen with the space planning. The last and the important point is the modeling. इसमें हम conclude करते हैं स्पेस को as it is written, application of standards and benchmarking to arrive at internal benchmarking. अब यहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा करके हम उसकी 2D ड्राइंग बनाएंगे, 3D ड्राइंग बनाएंगे, हम इसकी मॉडल मेकिंग करेंगे, हम इसकी 3D प्रिंटिंग कराएंगे अपने स्पेस की। किस लिए? कि देखने के लिए कि कहीं हमारे फ्लॉज तो नहीं है बेंचमार्किंग एंड स्टैंडर्ड्स में। और बस यहीं तक बात नहीं रह जाती, एक कदम और आगे जाते हैं लोग, 1 step further by making the mock-up। जो आपने डिज़ाइन को विजुलाइज किया था through all 2Ds and 3Ds and model making and the 3D printing etc, उसको रियल स्पेस में रियल मटेरियल से रियल में बनाकर देन फील करना whether things are going as per our imagination or not। if it is yet not looking good, suppose 10 लोगों ने एक चीज़ को डेवलप करी, हंड्रेड्स ऑफ डेज लिए, फिर भी वो चीज़ फेल हो सकती है। चाहे आपने 2D बनाया हो, 3D बनाया हो, मॉडल मेकिंग करी हो, 3D प्रिंटिंग करी हो, तो एक और लास्ट चांस होता है हमारे पास, दैट इज टू मेक रियल स्टफ ऑन रियल साइट जस्ट टू सी वेदर थिंग्स आर हैपनिंग और नॉट। अगर आपको हैपनिंग नहीं लगता है तो व्हाट यू डू, यू ब्रेक इट। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं mock-up. So by understanding these pointers, you get to go very close to understanding the STEM-based space planning. Thank you for watching this video. Third edition of this video will come up next.